सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस किस टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक हर टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये टॉपिक कम से कम 4 से 6 मार्क्स अपने साथ कैरी करता है। सो ये टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू द टॉपिक and start studying properly and sincerely about your exams. So friends, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ समझाया है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स द टॉपिक और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए टू नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और साथ के साथ मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, let's simply understand the meaning of polity. So friends, polity is nothing but a form of government, the government which is governing the country. So friends, there are several forms of government in the world, like democratic form of government, republic form of government, dictatorship form of government. These are all type of government which runs the country. So our India is a democratic country. That means our government is democratic. So this polity means nothing but it is just a form of government. So now there are 3 organs of government. That is, first is legislature, the elected members, we cast vote and elect members. Next is executives, the council of ministers, like those who sits in parliament, those are executive. And the last one is judiciary. Judiciary is the law and the court, is nothing but law and the court. That is the chief justice of high court, justice of supreme courts, judges, and all these are known as judiciary. So friends, this is only government, and polity I had already discussed with you that is, polity is nothing but a form of government. So friends, what describes these all 3 organs? गवर्नमेंट को कौन डिस्क्राइब करता है? ऐसी कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करती है? सो फ्रेंड, इट इज नथिंग बट इट इज कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन is the only thing that describes the government. That is nothing but constitution. Now we will understand what is constitution. So constitution is the supreme law of the country or the highest law of the land. This question has been asked many times, that what is the highest law of land? It is not supreme court, not high court, it is constitution. So friends, constitution is the supreme law of the country. That is, nothing is above than constitution. constitution से ऊपर कुछ भी नहीं है. इट इज द हाइएस्ट लॉ. ये सबसे बड़ा लॉ है इंडिया का या फिर एनी ऑफ एनी कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाइएस्ट लॉ. सो इट इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड गवर्न. कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ body means that it is like a book which contains all the fundamental principles according to which the government will work. So it is, constitution is like a book which contains all the rules and principles with which the government will work. It lays down the basic rules of minimal coordination in the society along with the form of government. So ये हमें बताती है कि सोसाइटी कैसे काम करेगी और हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करेगी. Its functions, responsibilities and limitations, hence constitution is fundamental. यानी कि ये हमारी फंक्शंस को डिफाइन करती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है और हमारी लिमिटेशंस की हमें क्या नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग. आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन इज एवरीथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लाइक ए थिंग दैट इज टू बी अफ्रेड ऑफ. कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है. इट इज सिंपली ए बुक जिसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो. सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रेंड्स, ये स्ट्रिक्टली बहुत जरूरी बात है कि ये वर्ड्स लार्जेस्ट रिटन, इट इज स्ट्रिक्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये रिटन है. नो अदर कंट्रीज हैज such a large constitution that is written. That means we have a book called constitution in which we have written all the rules and fundamental duties and all the principles that we will discuss later on. It is written in a book. So our Indian constitution is the world's largest written constitution. Friends, mention the word written. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है.
Indian Constitution is evolutionary and it was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशनरी, दैट मीन्स इसका जन्म हुआ है, हमने कहीं से इसको एकदम से नहीं मिली हमें, हमने धीरे धीरे इसे बनाया है. एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसे बनाने का काम किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को, एंड केम इनटू फुल ऑपरेशनल विद इफेक्ट्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारा तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था. लेकिन ये इफेक्ट में कब आया, इसका यूज हमने कब करना शुरू किया, दैट इज फ्रॉम 26 जनवरी 1950. सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और अगले साल हमने 26 नवंबर को उसको इंप्लीमेंट किया. हमने 26 नवंबर को ही कुछ इसके जो पार्ट्स हैं इसको हमने यूज करना शुरू कर दिया था, बट जो फुल इफेक्ट है, फुल इसको हमने यूज करना शुरू किया, दैट इज फ्रॉम 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. सो अब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना. इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. British in India have laid down some administrative and legislative developments in India for the convenient administration of British India. So friends, हमें पता है कि हम 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था. तो उन्होंने कुछ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के लिए कुछ लॉज बनाए हुए थे ताकि उनका जो कामकाज है वो आसानी से चल सके. दिस बिकेम द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो जो उन्होंने लॉज बनाए थे वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डायरेक्ट सोर्स का काम किया. उन्होंने जो रूल बनाए थे हमने वही रूल्स थोड़े मॉडिफाई किए, थोड़े चेंज किए और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे ऐड किया, उनको एक बुक के अंदर लिखा जिसका हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमारे जो कुछ एक रूल्स हैं, कुछ एक हमारे एक्ट्स हैं जो जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. It introduced bicameralism with direct elections in the countries. So इसने डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट किए इस एक्ट ने कि कंट्रीज के अंदर, कंट्री हमारी इंडियन कंट्री के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे. बाइकैमरलिज्म इज नॉट अ वर्ड टू बी अफ्रेड. ये सिंपल एक वर्ड है. बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि इसके अंदर टू टाइप ऑफ हाउसेज विल बी देयर इन अ कंट्री. दैट इज दो तरह के सभा होंगी. दैट इज एन अपर हाउस एंड अ लोअर हाउस. दैट इज वैसे राज्यसभा एंड लोकसभा. दैट इज नथिंग बट राज्यसभा एंड लोकसभा. बाइकैमरलिज्म का मतलब बस यही है. तो फ्रेंड्स डरिए मत इस वर्ड्स के साथ. बड़े बड़े वर्ड्स सिर्फ डराने के लिए होते हैं, इनका मतलब बहुत आसान होता है. सेकंड है इट प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन. इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वजह से इसने एक इस्टेब्लिश किया पब्लिक सर्विस कमीशन. Hence, a public service commission was set up in 1926. The point to be noted, friends, UPSC, the word we have listened many a times, it was set up in 1926 by the Act of Government of India Act 1919. So, friends, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. ये UPSC या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया वो किस लिए इस्टेब्लिश किया गया? फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स. जो हमारे IAS IPS जो सेलेक्ट होते हैं, इस वजह से ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा इस्टेब्लिश हुआ. In November 1927, British government adopted a commission, Sir John Simon, to review the working of government India. So friends देखो, जैसे पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसके बाद आया जॉन साइमन का कमीशन, सर जॉन साइमन कमीशन. वो इसलिए आया कि वो काम देख सके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या काम हुए, यानी उसको रिव्यू करने के लिए सर जॉन साइमन कमीशन आया. लेकिन वी ऑल नो जॉन साइमन कमीशन एंड वी आर very much aware of the slogan Simon go back. So why was so much criticism about the Simon commission? Because all members of the commission are Britishers and all the Indian party did not attend the commission. क्योंकि उस कमीशन के अंदर, उस पार्टी के अंदर, उस ग्रुप के अंदर सारे जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे. और इंडियन जो पार्टीज थी उस टाइम, जो कांग्रेस पार्टी थी और भी जो छोटी मोटी पार्टीज थी, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया. सो जॉन साइमन कमीशन डिडंट वर्कड. सो सेकंड सोर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आधार रखा. दैट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट प्रोवाइड द बेसिक स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक ढांचा प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये.
एंड इट वाज ट्रीटेड ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कि एक फॉर्मेट हमारे पास तैयार हो चुका था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. It provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as unit. इसने क्या किया, इंडिया को फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक ग्रुप बना दिया किसका, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स यू रिमेंबर हैदराबाद, these are princely states that are governed by kings and provinces that were governed by Britishers. This act divided the legislative power between the center and the unit, provided the office of the governor, इमरजेंसी पावर एक्सेट्रा. इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हमारे लिए ऑफिस गवर्नर की एक पोस्ट प्रोवाइड की और इमरजेंसी पावर वगैरह के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी कि जो विच वी विल इंक्लूड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स of our constitution was the Indian Independence Act 1947. So friends, don't be afraid, don't be get confused कि Indian Independence Act, Government of India Act क्या क्या है ये. It is simply the words, the act starting with Government of India Act are given by Britishers and the act starting from the Indian Independence Act are given by or after independence or by Indians. It officially ended the British rule in India. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसने ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर ऑफिशियली खत्म कर दिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरन स्टेट फ्रॉम अगस्त 1947. सो हमें पता है फ्रेंड्स, आवर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947, इस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और इंडिया वाज ए सोवरियन स्टेट. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू सेपरेट डोमिनियंस ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. हमें पता है फ्रेंड्स, इस दिन पाकिस्तान और इंडिया का सेपरेशन भी हुआ था. सो फ्रेंड्स, द पार्टीशन प्लान वाज गिवन बाय लॉर्ड माउंटबेटन. उस टाइम हमारे गवर्नर जो थे वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, हेंस द प्लान वाज कॉल्ड माउंटबेटन प्लान. देखिए सिंपल है फ्रेंड्स, माउंटबेटन ने प्लान दिया, लॉर्ड माउंटबेटन विच वाज गवर्नर, आवर लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिशर्स का लास्ट गवर्नर और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर वाज लॉर्ड माउंटबेटन. एज इट वाज लास्ट गवर्नर, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडियंस ने इसको ही गवर्नर बना दिया. तो पार्टीशन प्लान वाज गिवन बाय लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान दिया था पार्टीशन का इंडिया और पाकिस्तान का, हेंस द प्लान इज कॉल्ड माउंटबेटन प्लान. इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है. ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि किस प्लान के बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ. ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया. एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि ये हमारा पहला गवर्नर जनरल था डोमिनिया, इट ऑफ इंडिया. It is purely India, not included any states or territory which was under British rule. And Jawaharlal Nehru became the Prime Minister of India. और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू को हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया. This act granted freedom of Indian princely states either to join India or Pakistan to remain free. So friends, जब हमारा पार्टीशन हुआ, when we got independence, उस टाइम जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि किसी राजा के रूल के अंडर थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप पाकिस्तान में चले जाइए या फिर फ्री, या फिर आपकी मर्जी है आप इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं. सो फ्रेंड्स, यू शुड रिमेंबर द इंसिडेंट ऑफ हैदराबाद. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद आज टू बी इन पाकिस्तान. वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूं. एंड यू कैन इमेजिन कि कितनी मुश्किल सिचुएशन होगी. वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर. सो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नथिंग एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस जो कलेक्टिवली काम करेंगे किसी लॉज के ऊपर, रूल्स के ऊपर, ड्यूटीज के ऊपर. जितने भी हमारे रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसको बनाने के लिए कुछ पर्सन्स अपॉइंट किए गए जिनको हमने कह दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे. सो फ्रेंड्स, आगे है कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. इन 1935 एम.एन. रॉय इज द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो फ्रेंड्स, एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी. सो फ्रेंड्स, this question has been asked many a times that who was the person who gave the idea of having a constituent assembly. It was M.N. Roy. So in 1935 उसी साल the first official demand by Indian National Congress of the Constituent Assembly to frame the Constitution of India. Indian National Congress ने डिमांड की
there should be a constitution of India. उसके 2-3 साल बाद in 1938 जवाहरलाल नेहरू declared that the constitution of India will be framed by elected constituent assembly without external affair. So 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसको बनाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और वो मेंबर्स कोई भी इंडिया से बाहर का नहीं होगा. दैट इज कि वो जो जितने भी मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उसके अंदर ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं होगा. तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट डू? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? सिंपली इट एक्सेप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉलोइंग वेज. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, बनाओ अपना कॉन्स्टिट्यूशन. ऑन अगस्त 1940, in August 1940, there was an offer drafted by British governments. It was given in August, so it was named as August offer in 1940. The British government accepted the INC demands on in principles. उन्होंने कहा कि अगस्त ऑफर, उन्होंने कहा कि हम आपकी डिमांड्स को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स को, दैट दे वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल एक्सेप्ट, दे विल सिंपली एक्सेप्ट. इन 1942 एक क्रिप्स प्लान आया इंडिया में. इन मार्च 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, द पर्सन बिहाइंड द क्रिप्स प्लान वाज सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो उनके नाम पर लिख दिया क्रिप्स प्लान. had a proposal to be adopted after Second World War, but it was rejected by Muslim League which wanted a separate state with separate constituent assembly. क्रिप्स प्लान ने कहा कि ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम अडॉप्ट कर लेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान लेंगे, बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग. लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट मिले और हमें हमारा एक खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा खुद का एक अलग से देश होना चाहिए. मुस्लिम लीग, यू नो मोहम्मद अली जिन्ना एपिसोड. फाइनली सो उसके बाद क्या हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946. जो अगस्त ऑफर था और क्लिप्स प्लान थे वो दोनों फेल हो गए. उसके बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान, दैट इज इन 1946. कैबिनेट मिशन इन 1946. डेट्स नीड टू बी रिमेंबर फ्रेंड्स. जिसके अंदर थे कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर एवी अलेक्जेंडर. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि उनका एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, उनकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये कि ये नहीं हो सकता. सो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? उसके बाद मुस्लिम लीग वाज हैज नो अदर ऑप्शन. उनको क्या हुआ? उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा. उनको कैबिनेट मिशन का जो रूल था वो एक्सेप्ट करना पड़ा. तो उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन? कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना शुरू हुआ. एज पर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी कब? नवंबर 1946 के अंदर फ्रेंड्स. सो क्या क्या था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? कितने मेंबर्स थे उसके अंदर? कौन मेंबर्स कहाँ से थे? कैसे सेलेक्ट हुए? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट. टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारे 389, जो कि टोटल सीट्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जिसके अंदर से 296 सीट्स वर अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, यू नो व्हाट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम. सो उसके अंदर 296 तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थी. 93 वर अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट दैट वर गवर्नड बाय द किंग्स, जो कि फ्री थे. दे वर नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल. These states were governed by kings. राजाओं के अंडर जो रूल थे, जो जगह थी, there were 93 states. Out of the 296 seats allotted to the British India, जो 296 सीट ब्रिटिश इंडिया को मिली, 292 were to be elected from governor provinces and 4 from chief commissioner provinces, 1 from each. यानी कि 292 ऐसी प्रोविंसेस जो कि गवर्नर के अंदर थी और 4 ऐसी प्रोविंसेस जो चीफ कमिश्नर के अंदर थी, और हर जगहों में से कोई एक मेंबर इलेक्ट होगा. The 93 representatives of the princely states were nominated by the head of the princely state. जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की, उसके अंदर से जो मेंबर आएंगे वो या तो हेड के द्वारा इलेक्टेड होंगे या फिर इट मे बी हेड और एनी पर्सन इलेक्टेड बाय द हेड. Thus the Constituent Assembly is partly elected and partly nominated body, because जो 296 जो सीट्स थी हमारी, उसके ऊपर तो इलेक्शंस होने थे, और जो 93 सीट्स थी उसके अंदर सिर्फ हमारा जो हेड था वहाँ का प्रिंसली स्टेट का, वो अपनी तरफ से एक मेंबर को भेजेगा. फाइन. क्या हुआ उसके बाद? रिप्रेजेंटेशन डिसाइडेड
who became the member बन गए हमारे. The election of the Constituent Assembly 296 were held in July August 1946. 1946 के अंदर हमारे इलेक्शंस हुए जुलाई और अगस्त के बीच में 296 सीटों के लिए. रिमेंबर फ्रेंड्स, 296 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए. टोटल सीट्स वर 389, जिसके अंदर से 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की थी, जहां से जो किंग है अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा. रिजल्ट क्या रहा इलेक्शंस का? इलेक्शन का रिजल्ट रहा कि 208 जो सीट्स थी वो कांग्रेस के द्वारा जीती गई, और जो 73 सीट्स थी वो मुस्लिम लीग के द्वारा जीती गई, और जो 15 बची हुई सीट्स वो कोई भी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो कि छोटे नंबर के अंदर से. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जीना आर नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जीना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसके ऊपर? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो फ्रेंड्स, ऑप्शंस के अंदर आपको कोई भी नाम दे सकते हैं, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जीना, जवाहरलाल नेहरू, एनी अदर ऑप्शन, नन ऑफ दिस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जीना, दीज आर द टू नेम्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा नहीं थे. दो देयर पार्टीज दैट इज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स वर देयर, जिन्होंने सीट जीती, बट ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा नहीं थे. सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं. एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है. सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पॉलिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इनको डिफाइन कौन करता है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, नथिंग इज अबव दैट कॉन्स्टिट्यूशन. कब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का. इन 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया. देन कुछ अगस्त ऑफर आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1935. एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया के लिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर जहाँ पर जो था हमारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. देन 1935 द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद 1930 के जवाहरलाल नेहरू के अंदर ने डिक्लेयर कर दिया कि वी हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी एक्सटर्नल अफेयर. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्सेप्टेड द ऑफर. दे गिव एन अगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स प्लान, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन मेंबर्स एंड मुस्लिम लीग्स. Then come the कैबिनेट मिशन प्लान in 1946, जिसने कहा कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कीजिए बिकॉज मुस्लिम लीग वांटेड सेपरेट नेशन. उसके बाद क्या हुआ? कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके लिए इलेक्शंस हुए. देयर वर 389 सीट्स, 296 वर ब्रिटिश इंडिया एंड 93 वर अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स. आउट ऑफ 296, how much won by Congress? There were 208 seats were won by Congress, 73 by Muslim League and 15 by independent members and other small members. And then Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah are not the members of the Constituent Assembly. The most important point to be remembered, friends. And friends, start studying properly. And polity is the most important topic for our competition exam. So friends, study properly and sincerely. And like our channel, subscribe, share, comment, and any issues that you have any problem in the videos, please write in the comment box. And please friends, it is completely free, and enjoy the video and start studying sincerely. Thank you friends. Bye.